So we had started doing reactions of acids. और मेरे ख्याल से पहले दो तो हमने प्रैक्टिस कर लिए थे कार्बन, बाकी दो भी जल्दी से कर लेते हैं, कार्बोनेट प्लस एसिड और अमोनिया प्लस एसिड, ताकि वो थोड़ी रिवीजन हो जाए, बिकॉज वी हैव टू स्टडी फॉर एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए. अच्छा, सो और ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से इक्वेशंस वगैरह काफ़ी आती भी थी. ठीक है, यू रिमेंबर मेकिंग दीज इक्वेशंस. नाउ एक दो और इक्वेशंस बस, वो कार्बोनेट प्लस एसिड और अमोनिया प्लस एसिड. Let's try and do those. Now, now carbonate plus acid. So I'm going to just make two equations. ताकि इसके बाद से फिर हम ना उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पढ़ेंगे. So let's say I have magnesium carbonate, and that magnesium carbonate reacts with a particular acid. Let's call that nitric acid. तो क्या बनेगा? Salt, water and carbon dioxide. Salt किस तरह बनेगी? उसी तरह बनेगी. H की जगह क्या आ जाएगा? Uh, in the place of H, Mg would take its place. So magnesium nitrate, Mg is 2 plus, NO3 is -1, so it's going to be MgNO3 twice plus water plus carbon dioxide. These are the two extra things that are produced in this reaction. So these are the two extra things that are produced in this reaction, और इसको balance कर लो तो 2 होगा. ठीक है, it's pretty much the same equation जो पहले हम कर रहे थे उसी तरह. Aluminium carbonate plus sulfuric acid. Aluminium carbonate is 2 minus, तो aluminium 2 हो जाएगा, और Al 3 plus होता है तो ये 3 हो जाएगा. Reacting with sulfuric acid, which is H2SO4, तो salt, water और carbon dioxide produce होगा. Salt किस तरह produce होगी? Salt would be produced, ये जो H है इसकी जगह aluminium is going to take its place. So it's going to form aluminium sulfate. SO4 is -2, Al is 3 plus water plus carbon dioxide. अच्छा, ये बन गया. And you need to balance this equation. You can balance this equation. Easiest को पहले target करो. Aluminium तो balanced है, carbon 3 है, तो यहाँ पे 3 carbon dioxides कर लो. Sulfurs are 3, so there's 3 sulfuric acids. Hydrogen is 6 over here. ठीक है, यहाँ पे hydrogen is 6, to make it 3 water molecules. So it's a balanced equation. Is this clear to everyone? Is it clear, Iram? Sidra, is this clear? Yes. अच्छा, the last one, which was ammonia plus acid. उसमें क्या होता था? NH3 plus any acid, HNO3 for example. तो H की जगह अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होती थी, जो कि फर्टिलाइजर्स भी होते थे. The H would get replaced by NH4 plus 1, or NO3. This H over here was the one that's going to get replaced by ammonium ion. तो ammonium nitrate बन जाता था. Pick any acid, the same thing would happen. NH3 reacting with phosphoric acid, H3PO4. तो उसमें भी साथ लेट क्यों है? NH3 with H3PO4. तो उसके अंदर भी सेम होगा. The H is going to get replaced by ammonium, तो NH4 plus 1 और PO4 minus 3 होता है, तो NH4 thrice हो जाएगा. और बैलेंस कर लो इसको, 3 कर लो. ठीक है, so it's a balanced reaction now. ये तो हमने सारे रिएक्शंस कर लिए. ठीक है, we did 4 reactions. और इन रिएक्शंस के ना आगे भी बड़ी कहानी होती थी कि खाली रिएक्शंस नहीं होते थे. ये रिएक्शंस है ना, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में क्या क्या पढ़ते थे? सॉल्युबिलिटी पढ़ते थे, आयोनिक इक्वेशंस पढ़ते थे. You would study how to prepare these salts in the lab, जिसमें excess method, titration और ionic precipitation, ये सारी चीजें उसमें होती थी. तो अच्छा, अब ये कि now we're going to come to carboxylic acids. तो carboxylic acids are like any other acids. बाकी acids क्या होते हैं? HCl है, आयनाइज करता है.
and it produces H plus 1 ions and Cl minus 1 ions. तो मतलब HCl हो, नाइट्रिक एसिड हो, फॉस्फोरिक एसिड हो, they all do pretty much the same thing. तो एथेनोइक एसिड होगा अगर CH3COOH, तो अच्छा, सो इफ यू हैव एथेनोइक एसिड तो उसमें याद रखना हमेशा ये एन वाला H जो है ना, ये टूट के अलग हो जाता है. तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू डू प्रीटी मच द सेम थिंग. ठीक है, वो भी H plus 1 प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी H plus 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनके रिएक्शंस भी एक ही जैसे होंगे. वो कहाँ पे था हमारा शुरू में जब हमने किया था, कहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो एंड वाला OH वाला H है ना, दिस इज द ओनली वन दैट्स गोइंग टू ब्रेक अवे. जैसे HCl में H टूट के अलग होता है, बाकी H को कुछ नहीं होगा. All of these hydrogens they're going to remain wherever they are. ठीक है, nothing would happen to them. It's this H over here, ये जो OH वाला H है ना, this is the one that's going to break away. चाहे वो प्रोपेनोइक एसिड है, जो भी है. और उसका फॉर्मूला क्या था उसका, ये मैंने कहा था कि CnH2n+1 COOH. हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, बस इस फॉर्मूले से ना फिगर आउट कर लेंगे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है. अच्छा, सो लेट्स ट्राई एंड कंपेयर द रिएक्शंस. पहला मेटल के साथ. अच्छा, मेटल के साथ रिएक्शन Na और HCl का रिएक्शन हो रहा है, तो सॉल्ट किस तरह बनती थी? सॉल्ट बनती थी कि H की जगह Na आ जाएगा, सो इट वुड फॉर्म NaCl. Na is +1, Cl is -1, दैट्स इट. और वो H कहाँ जाता था? इट वुड फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2. बैलेंस करने के लिए इसको हाफ कर दो. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू पिक कार्बोक्सिलिक एसिड Na reacting with ethanoic acid, which is Na reacting with ethanoic acid, which is CH3 COOH. सॉल्ट किस तरह बनी? उसी तरह ये जो एन वाला H नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का H, इट्स गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड. तो पीछे क्या रह जाएगा? CH3 COO-1 is going to be left behind. एंड उस H की जगह जैसा यहाँ पे HCl की जगह H की जगह Na आ जाता था. ठीक है, the Na would come in and it would replace the H. The same would happen over here. The Na would come in, H को साइड पे करेगा और खुद आ जाएगा. Na is +1. So Na is +1 and hydrogen gas is going to be produced next to it. ठीक है, so this is what's going to happen. और ये भी मतलब एक ही H रिप्लेस हुआ, तो ये half H2 होगा. Is this example clear? Mahad, is this clear? साथ clear है? Ahmed clear है? Yes, sir. Yes. तो ये आपने करना है, आपने तो मतलब उसी तरह रिएक्शन है जैसा बाकी एसिड्स के रिएक्शन है, उसी तरह होगा, एग्जैक्टली उसी तरह होगा. बस उसमें एक ख्याल रखना है कि NaCl में आप चार्जेस शो नहीं करते हैं, मतलब ऑल्दो Na is +1, Cl is -1. लेकिन एक कन्वेंशन ये है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट बनती है ना, तो यू यूजुअली शो द चार्जेस. और इसमें ये भी याद रखना कि दिस इज एथेनोइक एसिड. तो हाउ वुड यू नेम द सॉल्ट? कि वो मेटल आ गया ना, तो पहले तो सोडियम लिखो. जैसा वो सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसका पहले सोडियम लिखो. और एथेनोइक एसिड से जो सॉल्ट बनेगी ना, दैट वुड बी कॉल्ड एथेनोएट. बस एथेनोइक एसिड से सॉल्ट बनेगी ना, एथेनोएट हो गया. प्रोपेनोइक एसिड से बनेगी तो प्रोपेनोएट, पेंटेनोएट एंड सो ऑन. तो आगे करते हैं कि एक और मेटल प्लस एसिड कर लेते हैं. लेट्स से मैग्नीशियम प्लस प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे. प्रोपेनोइक एसिड CN H2n+1 COOH. पूरा बनाने की जरूरत नहीं है. प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, लेकिन n की वैल्यू क्या लोगे? 3 - 1. मैंने कहा था n की वैल्यू एक कम लेनी है, तो 2 लोगे. तो इट्स गोइंग टू बी C2 H2 into 2 4 4 plus 1 5 COOH. That's propanoic acid. So it's going to be C2H5 and COOH. अच्छा, क्या होगा? Mg आएगा और H को हटा देगा, तो it's going to be C2H5. वो H हट जाएगा तो CO-1 रह जाएगा और Mg उसकी जगह आ जाएगा, Mg2+ हो जाएगा. अच्छा, क्रिस क्रॉस उसी तरह करना है. इट्स लाइक द नॉर्मल क्रिस क्रॉस.
मतलब ये 2+ है, तो इसका मतलब है ये वाले जो आयन्स है ना, ये कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसा वो SO4 - 2 डबल नहीं हो जाता एल्यूमिनियम, तो ये जो -1 आयन है दैट्स गोइंग टू बी डबल क्रिस क्रॉस, ठीक है। प्लस व्हाट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस। उसको बैलेंस कर लो, ये आयन डबल हुए हुए हैं, तो ये इसका मतलब है ये भी दो होंगे, ठीक है। दो होंगे तो दो आयन्स बने हैं ना। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये हम हटा ही देते हैं। इज इट क्लियर है, इरम क्लियर है? Yes, it is. अच्छा, उसी तरह लेट्स से एल्यूमिनियम प्लस मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड क्या होगा, मेथ का मतलब एक कार्बन एटम है, तो 1 - 1 0, एन की वैल्यू क्या लेनी है, 0। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करो तो सी तो 0 हो गए, एच 0 × 2 0 + 1 तो 1 हो गए, तो HCOOH होगा, ठीक है, मेथनोइक एसिड। तो HCOOH, इसका रिएक्शन क्या होगा, एल्यूमिनियम आएगा और H को हटा देगा, तो इट वुड बी HCOO - 1, और एल्यूमिनियम 3+ है, तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये 3 होंगे, ये 3 तभी होंगे अगर ये 3 होंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन गेट्स नॉक्ड आउट। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, ये फिर 3/2 होना चाहिए, मतलब 3/2 मीन्स के 3 हाइड्रोजन। आई मीन इफ यू हैव 3 एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स, तो एल्यूमिनियम आएगा, इट वुड नॉक आउट 3 ऑफ द हाइड्रोजन, तो you multiply it by 1.5. अच्छा, this would be called aluminium methanoate. ठीक है, it's going to be called aluminium methanoate. अब ये कि, और इसी तरह ना you can make up pretty much any equation, एक equation बस practice कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को question दूंगा कि बेस का कर लेते हैं। Magnesium hydroxide, which is MgOH2, plus ethanoic acid, CH3COOH. Same cheese. H gets knocked, Mg is going to take over, ठीक है, so it's going to be CH3 COO - 1, and Mg would be 2+, तो ये डबल कर लो, प्लस वाटर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये अगर दो आयंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब देयर वुड बी 2 एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स, एंड द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन काइंड ऑफ लुक्स बैलेंस्ड, मतलब 4 ऑक्सीजंस है, मतलब इट काइंड ऑफ लुक्स बैलेंस्ड। उसको काउंट कर लो, नहीं बैलेंस्ड एक्चुअली, हाइड्रोजन्स काउंट करो कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में, देयर आर 4 हाइड्रोजन्स, 3 + 1, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन्स प्लस 2 हाइड्रोजन्स, दैट्स अ टोटल ऑफ 10 हाइड्रोजन्स। तो ये तो काफी ज्यादा हाइड्रोजन्स बन रहे हैं। तो इधर कितने हैं, इधर 6 है, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर टू बैलेंस दीज इक्वेशंस। महाल क्लियर है ये? Yes. अच्छा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट की इक्वेशन कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस प्लस मेथनोइक एसिड, ठीक है, HCOOH, the H is going to get knocked out, sodium would take its place, HCOO - 1, और Na+1 आ जाएगा उसके साथ, प्लस इसमें क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसको बैलेंस कर लो, Na लेफ्ट साइड पे दे 2 NAs, तो 2 NAs ऑन द राइट साइड, HCO -1 भी 2 हो गए, तो इसको भी फिर पूरे को डबल कर लो, एंड व्हाट एल्स, देयर इज 1 कार्बन, तो ये तो 1 ही होगा, ठीक है, सो नो नीड टू बैलेंस दैट, एंड यू कैन काउंट द हाइड्रोजन्स, देयर वुड बी 4 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, एंड दैट्स इट, 2 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, 2 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, तो वो भी बैलेंस्ड है। अच्छा, लास्ट वन, the reaction with ammonia. What's going to happen if ammonia reacts with, let's say, propanoic acid? Now, propanoic acid, तो हमने क्या पढ़ा था कि अमोनियम सॉल्ट बनेगी, H रिप्लेस होगा, तो इट्स गोइंग टू बी C2 H5 COO - 1, और वो जो H होगा ना, इट्स गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय द अमोनियम आयन,
That's it. जैसा वो HCl, ये सारे reactions उसी तरह. तो exactly, it's going to behave exactly like the other acids, nothing different. तो अब एक काम करो, try and make, ये मैं equations दे रहा हूँ कि अच्छा इस बोर्ड का लिंक भी मैं वैसे just 1 second, let me quickly share the board link as well ताकि इसको आप open कर लो. Just 1 second. अच्छा, so the board link, अच्छा I've shared the board link. Try and solve, make equations. ये मैं पूरी list दे रहा हूँ equations की. Number 1, it's calcium. You start with calcium plus butanoic acid. Number 2, aluminium oxide plus pentanoic acid. Number 3 is iron 2 hydroxide plus methanoic acid. Number 4 is copper 2 carbonate plus propanoic acid. And the last one is ammonia plus एक एसिड का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, 5 इक्वेशंस. ये जल्दी से ट्राई करो, 10-15 मिनट्स के अंदर ट्राई एंड मेक दीज इक्वेशंस. Did you figure out what was butanoic acid? I mean, what's C4. I mean, C is 4, right? But I told you that when you're using the general formula of butanoic acid, you're going to take N is equal to 3. I mean, but is 4 carbons, right? Yeah. But the way you use the general formula is that you take N as 1 less than the number of carbon atoms. You're going to take N as 3. So it's going to be 3 into 2, 6. 6 plus 1 is going to be 7. COOH. I mean, the reason you do that is because there's one C already present in carboxylic over here. Mahal, is this clear? Yeah. अच्छा, इसका क्या करना reaction? You have to make it with calcium. So what's going to happen? The H is going to get replaced by calcium. So it would be C3H7, COO minus 1, and the H would be replaced by calcium, which is 2 plus. Is this clear? Yes. Plus, it's a metal plus acid reaction, so hydrogen gas is going to be produced. And doing crisscross, this should be multiplied by 2. Is that also clear? Mahad, is this clear? Yes, sir, it's clear.
Mg is going to be 2 plus. The weak acids, they're going to have slow reaction. तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो. Now weak acids दोनों का रिएक्शन सेम है. दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड आई एम सेइंग कि एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम. कि टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, मतलब ये फास्ट है, ये स्लो है. Rate of reaction would depend on 5 things. One was kg. The number one thing was temperature. तो मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हुआ है. सेकंड वाज प्रेशर, कांस्टेंट है. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट है दोनों के अंदर. कैटलिस्ट है ही नहीं इसके अंदर. और एक सरफेस एरिया कि मैग्नीशियम दोनों में ना एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पाउडर्ड फॉर्म में, लेट्स से. But the reaction of ethanoic acid would still be, even if the conditions are exactly the same, the reaction would be slower. ठीक है, it's going to be a slow reaction. And we can actually make a graph of this. कि दोनों केसेस में ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. दिस एक्सिस इज द टाइम एक्सिस और उस साइड पे ना लेट्स से वॉल्यूम ऑफ H2 गैस आप कलेक्ट कर रहे हो. तो HCl के केस में रिएक्शन जो होगा बड़ा तेज होगा, वो बड़ी तेजी से H2 गैस प्रोड्यूस होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि वो बनना बंद हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया. तो स्टार्ट में बड़ी तेजी से H2 गैस प्रोड्यूस होगी फर्स्ट रिएक्शन में. दिस इज विद HCl. ठीक है, दिस रिएक्शन इज द वन that's going to happen with HCl. अच्छा, उसका रिएक्शन कैसा होगा? दूसरे वाले का उसका रिएक्शन सेम अमाउंट ऑफ H2 प्रोड्यूस होगी. मैंने कहा सब कुछ सेम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सेम अमाउंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी, द कर्व इज गोइंग टू बी लेस स्टीप. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लेस स्टीप एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्लो रिएक्शन. अच्छा, रीजन क्या है कि स्लो क्यों है? उसकी रीजन ये कि मतलब एक तो वीक एसिड तो ऑब्वियस है, लेकिन वीक एसिड आयंस कम बनाता है ना, तो it dissociates या ionizes less. HCl जो है ना, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स डालूंगा ना, 100 के 100 टूट जाएंगे एंड दे वुड ब्रेक अप इनटू H+1 and Cl-1 ions. तो मतलब अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स डालता हूँ ना, तो आई विल गेट 200 ions. मतलब 100 H+1 ions बन जाएंगे और 100 Cl ions बन जाएंगे. But if I add ethanoic acid, तो ethanoic acid जो है वो डिसोसिएट ही नहीं होगा. वीक एसिड है, वो H+1 तोड़ के अलग ही नहीं करेगा. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम होंगे, डिसोसिएट्स लेस. So hence you're going to have fewer ions in solution. And because you have fewer ions in solution, there are going to be less frequent collisions. And slower reaction. ये पॉइंट सारों को क्लियर है? ना क्लियर है? महा, सिद्रा, साथ क्लियर है? Yes. तो Yes. ठीक है, dissociates less, fewer ions in solution, and you're going to have less frequent collisions. तो जो reactions normal acids के साथ बहुत तेज होते हैं, ethanoic acid या any carboxylic acid, it's going to be very very slow reaction. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में. और बाकी मैं साथ ही एक सेकंड प्योर टेबल भी, वो प्योर टेबल कह रहा हूँ. बस वो ऑर्गेनिक का एक दफा हम गो थ्रू कर लें कि क्या रहेगा, दोनों सिलेबस ही देख लेते हैं. Just one second, let it open. कार्बोक्सिलिक एसिड में वो एस्टर्स आता है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, बस अब पॉलीमर्स रह गए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स. बस लेट मी जस्ट कंफर्म कि
पता नहीं, the internet is very slow. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तो वो टिपिकल एसिड वाले रिएक्शंस तो कर लिए, एस्टर्स भी कर लिए, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो भी हम पहले कर चुके हैं कि हमने वो पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो KMnO4 और उसके साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो दैट हैज बीन डन एज वेल, ठीक है। ये हमने वीक एसिड और एसिड के एसोसिएटेड जो भी इक्वेशंस हैं वो भी हमने कर लिए। सो वी डन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका भी देख लेते हैं एक सेकंड, 5070 का भी। ये एस्टर्स, ये वाला ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लिखा होता है इसमें 5070 में। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डन, वीक एसिड्स वो हमने कर लिए, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन भी